Hello everyone, welcome back to the channel. This is Shailesh SH. Now I'm going to discuss the one more important topic, that is drawback of Dalton's atomic theory. In the postulates we have understood five important points that atoms are related we have discussed. But here what are the things we could not able to understand? Those are called limitation or drawback. Dalton क्या क्या नहीं बोल पाता है with respect to atoms. That is, we will understand one by one. There are five drawbacks that then you will understand. First one, atom is no longer considered as the smallest indivisible particle. Postulates में क्या पढ़ा था? Atom is the smallest particle which we cannot further divisible, right? But it is wrong. Some scientists came like J.J. Thomson and Chadwick. These scientists came, they proved that atoms can be further divisible into a subatomic particles like protons, electrons and neutrons. As you can see in the image here, atom consists of a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है एंड न्यूट्रॉन भी है. एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स विल रोटेट. विल डिस्कस लेटर ऑल दिस थिंग्स, बट हियर वी अंडरस्टूड एटम को भी फर्दर डिविजिबल कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. व्हेन इट कम्स टू द सेकंड वन, आइसोटोप के बारे में आप लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है. आई जस्ट मेड वन मोर वीडियो, जस्ट लुक इनटू दैट आल्सो. व्हाट इट सेज, atoms are element which are having same atomic number, but different mass, right? We know this much. Example, hydrogen if I took atomic number 1 1, मास इसका 1 होता है, इसका 2 होता है. इसी को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको प्रोटोनियम भी बोल सकते हैं. सेम कार्बन को ले लो. कार्बन एटॉमिक नंबर 6. आइसोटोप कितना है? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, तो इसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं. पोस्टुलेट क्या बोला था? एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टीज. बट इधर देखो, एटम सेम ही है ना. इफ आई एम कंसिडरिंग द कार्बन एटम हियर, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दिस एलिमेंट मॉलिक्यूल आई टुक. एलिमेंट इधर लिया तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तीनों सेम ही है ना. इसमें एलिमेंट अगर सेम है तो डिफरेंट मासेस है. अगर मास डिफरेंट हुआ तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया ना. सो उसका सेकंड पोस्टुलेट भी क्या हुआ? फेल हुआ. एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट विल शो सेम प्रॉपर्टी, बट इधर क्या है? डिफरेंट है ना. मास डिफरेंट हो गया. ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है एंड ये भी कार्बन ही है. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. सो इन विच 6 प्रोटॉन आर देयर, 6 न्यूट्रॉन्स आर देयर. यस सेम, बट मास क्या हुआ? इसका 12 हुआ तो इसका 13 हुआ, इसका 14 हुआ, कार्बन 14 का. आई होप यू अंडरस्टूड. मास इज गोइंग टू बी डिफरेंट, देयरफॉर atoms of a same element will have different masses. So postulates 2 गलत हुआ. This is the one more topic where he could not able to explain the isotopes. Isotopes के बारे में he could not give any definitions. Done. This is the postulate 2. We'll go for the third postulate, that is atoms of a different element may have same masses. But what he told, अगर atom different है तो postulates of Dalton क्या था? If atom is different, then property will be different. We have discussed this one. This is postulates, okay. But इधर देखो how it is going to be wrong. पोटेशियम है, कैल्शियम है. इमेज में भी दे सकते हैं आप लोग. कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, आर्गन भी. ये आइसोटोप नहीं है. एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है. बट मास क्या है? पोटेशियम का 40 लिया, कैल्शियम का भी 40 लिया ना. देखो एटम्स इज डिफरेंट, कि पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, दोनों डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट, राइट. बट इधर क्या हुआ? उनका मास क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. प्रॉपर्टी पूरा डिफरेंट होना चाहिए ना, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी सेम हुआ तो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी गलत. देयरफॉर ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन isobars. He could not able to explain isotope. He could not able to explain isobars. You need to understand these 3 points. Now explained about isobars. I hope you understood. You can consider with the potassium also, and argon and calcium. Element different है, but they are having same masses. That only we call it as isobar also. Atomic number is same. Sorry, atomic number is different, but mass क्या है? Same है. ये इसके बारे में डाल्टन ने नहीं बोल पाया. Done. We'll go for the fourth postulates.
Substance made up of the same kind of atoms may have different property. पोस्टुलेट क्या आता है, सेम एलिमेंट है तो सेम प्रॉपर्टी रहना चाहिए, लेकिन इधर फिर से डिफरेंट हुआ। कैसा, आप देख सकते हैं इधर डायमंड ग्राफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरिन बोलते हैं इसको। इधर क्या है देखो, डायमंड एंड ग्राफाइट में ये देखो, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच यू कैन नॉट ब्रेक। ग्राफाइट क्या रहता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म आल्सो। स्टेट डिफरेंट है ना, फिजिकल स्टेट दोनों का डिफरेंट है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो भी इधर डिफरेंट डिफरेंट आता है, कंडक्टिविटी भी इज आल्सो डिफरेंट। इसीलिए एलिमेंट सेम है तो भी दिस आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ये डॉट डॉट क्या है जो ब्लैक कलर का है, इधर कार्बन ओनली, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। एलिमेंट सेम है लेकिन उनका प्रॉपर्टी उनका स्टेट क्या है, डिफरेंट है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। शेप भी इनका अलग अलग है, कंडक्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग ही होता है। देयरफॉर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट पोस्टुलेट क्या बोलता था, एलिमेंट सेम है तो एटम सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, लेकिन गलत है वो। इसीलिए दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फोर्थ वाला। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट वन, द रेशियो इन विच, व्हाट ही टोल्ड, जब भी एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उनका रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर में रहता है। लेकिन इधर एक मॉलिक्यूल देखो, ये रूल इसको अप्लीकेबल नहीं होता है, वो स्टेटमेंट जो भी बोलता है दैट इज ऑल्सो गलत। क्यों, द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मे बी फिक्स्ड और इंटीग्रल एंड बट मे नॉट बी सिंपल। वो क्या बोला था पहला पोस्टुलेट्स में, दे माइट बी सिंपल बट इधर सिंपल नहीं होता। क्यों, आप देखो ग्लूकोज देखो C6H12O6 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होता है, C1H6O1 हो गया ना, 1:6:1, ये बड़ा है रेशियो है, सिंप्लीफाई यू कांट डू दिस वन। और एक ले लो C12H22O11, इसको सिंप्लीफाई करो, यू कांट सिंप्लीफाई एवरीथिंग, सिंप्लीफाई करना है तो पूरा करना चाहिए, इसको नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यू कांट सिंप्लीफाई ओवरऑल वैल्यूज। ये जैसा है रेशियो वैसा ही बच जाता है, 12:22:11, दिस इज नॉट सिंपल रेशियो। समझ में आ रहा है, इसका फिक्स्ड है मास, रेशियो बाय मास फिक्स्ड है, लेकिन इन लोगों का सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, दे आर नॉट इन द सिंपल फॉर्म, देयरफॉर ही कुड नॉट एबल टू explain about that also. These are 5 postulates related to Dalton's, not postulates, these are the drawbacks of Dalton atomic theory. जो भी postulates वो बोलता है उसका ये points क्या करता है, they proved it is completely wrong, postulates गलत है बोल के these drawback will says. I hope you understood 5 important points. Please practice well, you will understand each and everything.